بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ فرانس کی حکومت ہمارے لیے خزانوں کا منہ کھول دیتی ہے۔ پولیس، فوج، ہیلی کاپٹرز، طیارے اور جدید ترین ہتھیاروں سے ہماری مدد کرتی ہے اور ہم سے دوستی نبھاتے وقت کسی سپر پاور کے دباؤ میں نہیں آتی۔ لہٰذا جو جنگ ہمیں پاکستان میں رہ کر لڑنی چاہیے وہ ہم فرانس میں رہ کر لڑتے ہیں۔ جو حضرات یہ حقیقت سمجھ نہیں پاتے وہ شکایت کرتے ہیں کہ فرحاد صاحب پاکستان کیوں نہیں آتے؟ بھائی نہیں آ سکتے، کبھی تقدیر ہی لائے تو لائے، کیونکہ تقدیر کی زور آوری کے سامنے ٹیلی پیتھی بھی دم نہیں مارتی۔ میرا بیٹا اور میری ہونے والی بہو پاکستان سے نکل گئے۔ طیارہ تبت کے روٹ پر پرواز کر رہا تھا۔ ثانی نے ایشیا کا نقشہ نکال کر سامنے پھیلایا۔ ہمالیہ پہاڑ کے دوسری طرف تبت نظر آ رہا تھا۔ ویسے یہ ملک نقشے ہی میں نظر آتا ہے، اگر رخت سفر باندھ کر وہاں پہنچنا اور اسے آنکھوں سے دیکھنا چاہیں تو یہ سب کے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہ ملک بین الاقوامی پرواز کے راستے پر نہیں ہے۔ بیشتر سیاح خصوصی فلائٹ سے جاتے ہیں۔ خشکی کے راستے نہایت دشوار گزار ہیں۔ چونکہ وہاں تک پہنچنا دشوار ہو جاتا ہے، اس لیے وہ علاقہ ساری دنیا کے لیے پراسرار ہے اور اس قدر بلندی پر ہے کہ اسے دنیا کی چھت یعنی روف آف دا ورلڈ کہا جاتا ہے۔ طیارہ خاصی بلندی پر پرواز کر رہا تھا۔ کھڑکی کے پار کراکرم کے بلند پہاڑ نظر آ رہے تھے جو برف سے ڈھکے ہوئے تھے۔ ثانی اور علی نے گرم لباس پہن لیے تھے۔ کو پائلٹ نے بتایا کہ وہ 1 گھنٹے بعد تبت کے دارالسلطنت لاسا پہنچیں گے۔ سلطانہ نے ثانی کے پاس آ کر پوچھا، ہیلو بیٹی، یہ سفر کیسا لگ رہا ہے؟ وہ مسکرا کر بولی، ممی ونڈرفل جرنی، یوں لگ رہا ہے جیسے میں خوابوں اور خیالوں کی دنیا میں پرواز کر رہی ہوں۔ بیٹی، مشرق یوں بھی خوابوں کی سرزمین ہے، مغرب سے وہاں جانے والوں پر سحر سا طاری ہو جاتا ہے۔ پھر تبت تو بے حد پراسرار علاقہ ہے، جادو نگری کہلاتا ہے۔ میں یہ بتانے آئی ہوں کہ فرانس کی حکومت کی جانب سے تبت کے حاکم کو تم دونوں کی آمد کی اطلاع دے دی گئی ہے۔ دارالسلطنت لاسا میں سرکاری طور پر تمہارا استقبال ہوگا اور تمہاری حیثیت شاہی مہمان کی سی ہوگی۔ او ممی، یہ اچھا نہیں ہوا، ہم آزاد نہیں رہیں گے، شاہی تکلفات میں گھر جائیں گے۔ ہم جہاں جائیں گے ہمارے آگے پیچھے شاہی گارڈز رہا کریں گے۔ ثانی نے یہ بات علی کو بتائی۔ علی نے سلطانہ کو اپنے دماغ میں بلایا، پھر کہا، آنٹی، کسی قسم کی بھی مہمان نوازی ہمیں الجھا دے گی۔ ہم عام سیاحوں کی طرح اس ساحر اعظم ساسان ڈوگرا تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ پلیز آپ تبت کے دلائی لاما حاکم سے معذرت کریں، انہیں سمجھائیں کہ کسی مجبوری کے باعث ہم سرکاری سطح پر نہیں آئیں گے، وہاں کے عام لوگوں میں رہیں گے۔ سلطانہ چلی گئی۔ 15 منٹ بعد سلمان نے آ کر کہا، بیٹے، تم دونوں فرانس کی حکومت کی طرف سے وہاں جا رہے ہو، لہٰذا دلائی لاما ضرور شاہانہ استقبال کرے گا۔ تھوڑی پابندی برداشت کر لو۔ ویسے بھی تمہیں دارالسلطنت میں ایک ہی رات گزارنی ہے، دوسری صبح وہاں سے سینکڑوں میل دور طلسم کدے کی طرف روانہ ہو جاؤ گے۔ دارالسلطنت لاسا میں تم دونوں کے لیے فرانس کا ہیلی کاپٹر پہنچ گیا ہے۔ علی نے ثانی کو دیکھا، پھر کہا، اچھی بات ہے انکل، ہم ایک رات کے لیے دلائی لاما کے مہمان بن جائیں گے۔ طیارہ مقررہ وقت پر لاسا پہنچ گیا۔ شاہی محل کی ایک گاڑی ایئرپورٹ کے رن وے پر انہیں لینے آئی تھی۔ اس کے علاوہ مسلح سپاہیوں کی گاڑیاں آگے پیچھے تھیں۔ ایک گاڑی سے 2 افراد باہر آئے۔ ایک شخص سوٹ پر اوور کوٹ پہنے ہوئے تھا، دوسرا مقامی لباس میں تھا۔ انہوں نے ثانی اور علی سے مصافحہ کیا۔ سوٹ والے نے مقامی لباس والے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، مسٹر علی، یہ دلائی لاما کے سیکریٹری ہیں۔ یہ لوگ انگریزی زبان نہیں جانتے، میں ان کی مقامی زبان میں ہونے والی گفتگو کا ترجمہ آپ کو سنایا کروں گا۔ ثانی اور علی نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ وہ مقامی زبان جانتے ہیں۔ وہ دونوں کار کی پچھلی سیٹ پر آ گئے۔ سوٹ والا اسٹیئرنگ سیٹ پر آیا، اس کے ساتھ والی سیٹ پر سیکریٹری بیٹھ گیا۔ پھر وہ محل کی طرف جانے لگے۔ سیکریٹری عقب نما آئینے میں ثانی کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے سوٹ والے مترجم سے کہا، مسٹر جوڈی، مہمانوں کو اچھی طرح سمجھا دو کہ یہ لاماؤں اور ساحروں کا ملک ہے۔ اس جوان نے اپنے ساتھ ایک حسین دوشیزہ کو لا کر غلطی کی ہے، بہتر ہے اسی طیارے سے لڑکی کو واپس بھیج دے۔ مقامی زبان کا ترجمہ کرنے والے جوڈی نے کہا، مسٹر علی، یہاں کچھ ایسے شیطان جادوگر ہیں جو حسین لڑکیوں کو غائب کر دیتے ہیں۔ ہمارے دلائی لاما کو یہ معلوم نہیں تھا کہ تمہارے ساتھ آنے والی اس قدر حسین ہوگی۔ دلائی لاما مس ثانی کو دیکھ کر پریشان ہو جائے گا، وہ بہت مہمان نواز ہے، لیکن 2 ماہ پہلے یونان سے آئی ہوئی ایک حسین لڑکی
महल के पाएं बाग से गायब हो गई थी। आज तक उसका सुराग नहीं मिला। उसके बाद उसने तय कर लिया कि आइंदा किसी हसीना को महल के अहाते में दाखिल नहीं होने देगा, जबकि तुम दोनों ख़ास मेहमान हो और वो मिस सानी की मेज़बानी से इनकार करके हुकूमत फ़्रांस को नाराज़ नहीं करना चाहेगा। अली ने पूछा, आप क्या चाहते हैं? हमारे दलाई लामा को परेशानी से बचाओ और मिस सानी को अभी वापस भेज दो। सॉरी, ये मेरी निस्फ़े बेहतर है, ये जाएगी तो मैं निस्फ़ रह जाऊंगा। वैसे दलाई लामा से कहो हमें शाही मेहमान ना बनाए, हमें किसी होटल में रात गुजारने दे। मैं ये लिख कर दूंगा कि हम अपनी मर्ज़ी से ऐसा कर रहे हैं और हुकूमत फ़्रांस इस मामले में दलाई लामा से नाराज़ नहीं होगी। आप दोनों होटल में रात गुजारेंगे, ये तो और ज़्यादा ख़तरे की बात होगी। दलाई लामा इसे तस्लीम नहीं करेगा। ना करे, सानी वापस नहीं जाएगी। वो सारी बातों का तर्जुमा सेक्रेटरी को सुनाता जा रहा था। सेक्रेटरी ने पीछे सर घुमाकर अली को देखा, फिर जूडी से कहा, ऐसा लगता है कि ये जवान इस हसीन लड़की से बेजार है और जानबूझकर किसी शैतान जादूगर को इसे उठा कर ले जाने की दावत दे रहा है। जूडी ने कहा, मैं क्या कह सकता हूँ, इसका फैसला दलाई लामा ही करेंगे। वो गाड़ियाँ महल के अहाते में दाखिल हुईं और मुसल्लह सिपाहियों की 2 कितारों के दरमियान से गुजरती हुई महल के बैरूनी दरवाजे के करीब रुक गईं। अंधेरा हो चला था। बर्फबारी के बायस रास्ते भी सुनसान थे। उन्होंने रास्ते में किसी मकामी औरत को नहीं देखा था। उनकी गाड़ी रुकते ही महल के दरवाजे से मकामी औरतें अपने मखसूस रंगीन लिबास में फूलों के हार लेकर आईं। सानी और अली गाड़ी से बाहर आए। उन पर फूलों की बारिश होने लगी। 2 लड़कियों ने उन्हें हार पहनाए। वो तमाम औरतें मोटी भद्दी सी थीं या फिर दुबली पतली नाजुक सी। उनकी नाक चपटी, आंखें बटन जैसी छोटी छोटी सी थीं। ये औरतें आधी रात को भी कहीं तन्हा जातीं तो कोई उन्हें उठाकर ले जाना गवारा ना करता। वो कनीज़ें सानी और अली को अपने दरमियान लेकर कोई गीत गाती हुई महल में आईं। एक दरबार नुमा हॉल में ऊंची मसनद पर दलाई लामा बैठा हुआ था। वो शायद इसी तरह शाहाना अंदाज में बैठा रहता, मगर सानी का हुस्न जमाल देखते ही एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। फिर कनीज़ों से बोला, खामोश हो जाओ, यहाँ से चली जाओ। वो चली गईं। दलाई लामा अपने सेक्रेटरी और जूडी से मकामी ज़ुबान में सानी की आमद के खिलाफ बोलने लगा। सानी और अली समझ रहे थे मगर अनजान बने हुए थे। थोड़ी देर बाद जूडी ने कहा, मिस्टर अली, हिज हाइनेस फरमाते हैं कि उनके खिलाफ बड़ी साजिशें हो रही हैं। 6 माह में बैरूनी ममालिक से आने वाली 3 हसीनाएं गायब हो चुकी हैं। उन ममालिक ने हमसे सिफारती ताल्लुकात तोड़ने और माली इमदाद बंद करने की धमकी दी है। हिज हाइनेस के दुश्मन उन्हें इक़्तिदार से हटाने के लिए ऐसी हरकत कर रहे हैं। अगर मिस सानी को भी अगवा किया गया तो फ्रांस जैसा बड़ा मुल्क हिज हाइनेस से नाराज़ हो जाएगा। अली ने कहा, मैं इस बात की ज़मानत देता हूँ कि खुदा न खास्ता सानी को कुछ हुआ तो हिज हाइनेस पर कोई इल्ज़ाम नहीं आएगा, लेकिन हमारा फ़ैसला अटल है कि हम होटल में रहेंगे या महल में, साथ रहेंगे। जूडी ने दलाई लामा को हमारा फ़ैसला सुनाया। वो मजबूर होकर बोला, ये होटल में रहेंगे तो इल्ज़ाम आएगा कि मैंने मेहमान नवाजी से इनकार किया। अगर इनकार ना करता और ये होटल ना जाते तो ये हसीना अगवा ना होती। बेहतर है ये दोनों महल में रात गुजारें। मैं मुसल्ला गार्ड्स के साथ खुद जाग कर पहरा दूंगा। सानी और अली को उसी महल में एक शानदार कमरा रहने के लिए दे दिया गया। उन्होंने कमरे में आकर दरवाजे को बंद किया। सलमान ने आकर कहा, मैं अब तक दलाई लामा और उसके सेक्रेटरी के चोर ख्यालात पढ़ रहा था। ये दोनों साजिशी नहीं है। कोई दलाई लामा को इक़्तिदार से हटाने की साजिश कर रहा है। साजिश वही करेगा जो उसके बाद इक़्तिदार में आएगा। यहाँ का दस्तूर है कि बेटा 25 बरस का हो जाए और बाप मर जाए तो वो अपने बाप की जगह दलाई लामा बनेगा। मौजूदा दलाई लामा का बेटा अभी 24 बरस का है। ऐसी सूरत में दलाई लामा की मौत पर या उसके इक़्तिदार से हटने के बाद भाई को इक़्तिदार मिलता है। मौजूदा दलाई लामा का एक भाई है, वही साजिश के ज़रिए यहाँ का हुक्मरान बन सकता है। क्या आप उसके भाई के दिमाग तक पहुँचेंगे? वो दारुस सल्तनत में नहीं है और उसका बेटा कहीं शिकार खेलने गया है। दलाई लामा की सोच ने बताया है कि उसका बेटा अय्याश है, शराब और शबाब का रसिया है। चूँकि अकलौता है इसलिए बाप सख्ती नहीं करता, सिर्फ ज़ुबान से समझाता रहता है। अय्याश बेटा हसीन लड़कियों को अगवा करा सकता है। महल के चोर रास्ते उसे मालूम होंगे। बेशक इस पर यकीन की हद तक शुबा किया जा सकता है। मजबूरी यह है कि मैं फ़िलहाल दलाई लामा के बेटे और भाई की आवाज़ भी नहीं सुन सकूँगा, ना ही उनके ख्यालात पढ़ सकूँगा। कोई बात नहीं, आप आराम करें। यहाँ अगवा की वारदात उस वक्त होगी जब मैं चाहूँगा, यानी आधी रात के बाद। क्या कह रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि मेरी बेटी को अगवा किया जाए?
क्या परेशान हो गए? नहीं, बेटी जब मर्दों की तरह ज़िंदगी गुजार रही है तो उसे बड़े नशेब व फराज से, बड़े मसाइब से गुजरते रहना होगा। मैं चाहता हूँ कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करो। मुजरिमों तक पहुँचने का यही रास्ता है। सानी को ले जाने वाले मकामी ज़ुबान बोलते होंगे, आप उनके दिमागों में जगह बना सकेंगे, उनके खुफिया अड्डे तक मेरी रहनुमाई कर सकेंगे। बेटे अली, जिस मकसद के लिए आए हो उसके लिए सुबह यहाँ से रवाना हो जाओ। यहाँ जो लोग अगवा करते हैं उनसे हमें क्या लेना देना है? दुनिया के हर मुल्क में, हर शहर में मुजरिम हैं। तुम कितनों को बेनकाब करके सज़ा दिलाओगे? अंकल, मैं अपने बाप के नक्शे कदम पर चल रहा हूँ। हम ये हिसाब नहीं करते कि दुनिया में कितने मुजरिम हैं। हम उन्हीं मुजरिमों से दो दो हाथ करते हैं जो हमारी राह गुजर पर दिखाई देते हैं। आपको बेटी के अगवा होने का खौफ है। प्लीज़ उन बेटियों के लिए भी दर्द पैदा करें जो हमारे जाने के बाद यहाँ से अगवा की जाने वाली हैं। मैं बहस नहीं करना चाहता। ये बताओ किस वक्त आऊँ? ठीक 12 बजे। सलमान दिमागी तौर पर हाजिर होकर सुल्ताना से बोला, फरहाद भाई के दोनों बेटे ज़िद्दी और गुस्ताख हैं। अली तो एक बाप के जज्बात को समझना ही नहीं चाहता। आखिर क्या हुआ है? वो अगवा करने वाले मुजरिमों के सामने मेरी बेटी को चारा बना रहा है। सुल्ताना ने कहा, आपके मुंह में सिर्फ एक बाप की ज़ुबान है। वो सलमान वास्ती कहाँ है जिसने बाबा फरीद वास्ती के ज़ेर साया परवरिश पाई? इस इदारे में बहुत से उलूम और हुनर सिखाने के साथ इंसानियत की खातिर जान की बाजी लगाने की नसीहत की जाती है। क्या सिस्टर सोनिया, आला बीबी, मरजाना और पुमी वगैरह ने बारहा जान और इज़्ज़त की बाजी नहीं लगाई? तुम्हें अपनी बेटी उन जांबाज औरतों से बरतर और अफजल क्यों लग रही है? सलमान ने दोनों हाथों से सर थाम कर कहा, मैं अपने मोहसिन आज़म बाबा फरीद वास्ती मरहूम की तालीमात को नज़रअंदाज कर रहा हूँ। बहुत गुनाहगार बन रहा हूँ, मगर क्या करूँ, बेटी का बाप हूँ। बेटी जवान होकर अपने शौहर की हो जाती है। सच पूछो तो मुझे ये सोचकर भी शर्म आती है कि अभी उनकी शादी नहीं हुई, निकाह नहीं पढ़ाया गया और वो दिन रात साथ रहते हैं। सुल्ताना ने कहा, मैं औरत हूँ, दूसरी औरत के बारे में मुझे भी तजस्सुस रहता है। मैं कई बार सानी के दिमाग में जाकर बातें करती रही और बातों के दौरान उसकी लाइल्मी में चोर ख्यालात पड़ती रही। उसके ख्यालात में कोई चोर नहीं, उसके दिमाग में दूर दूर तक गुनाह का तसव्वुर नहीं है। और अली जैसा शरीफ और संजीदा जवान मैंने पहली बार देखा है। वो दोनों एक उसूल को मानते हैं, और वो ये कि हर काम अपने मुनासिब वक्त पर होना चाहिए। नामुनासिब अमल गुनाह और जराइम की तरफ ले जाता है। वो सलमान के शाने पर हाथ रखकर बोली, सानी यहाँ से दुपट्टा ओढ़ कर गई है, उसे वापस आने दो। मैं उसके आंचल पर नमाज पढ़ूंगी, फिर तुम्हें। वो बोला, बस करो सुल्ताना, तुम्हारे यकीन मोहकम ने मेरे दिल और दिमाग से गर्द साफ कर दी है। मुझे अपनी गैरतमंद बेटी और होने वाले दामाद की शराफत पर नाज है। अब मैं वहाँ के वक्त के मुताबिक 12 बजे उनके पास जाऊँगा। महल के एक आरास्ता बेडरूम में वो दोनों तन्हा थे। उन्होंने दलाई लामा के इसरार पर बराए नाम कुछ खाया था, फिर उस बेडरूम में आकर दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया था। बाहर बर्फबारी जारी थी, अंदर गजब की सर्दी थी। ऊनी लिबास पहनने के बावजूद सर्दी लग रही थी। अली ने घड़ी देखकर कहा, 8:20 हुए हैं। अगर हम 3 घंटे की नींद पूरी करें तो 11:30 बजे बेदार हो जाएंगे। सानी ने तायद की, ठीक है, हम थोड़ी देर सोने के बाद ताज़ा दम हो जाएंगे। वो दोनों शाहाना तर्ज के पलंग पर आ गए। एक पलंग पर ना अली को झिझक हुई ना सानी को शर्म आई, क्योंकि उन्होंने झिझकने और शर्माने वाली कोई हरकत अब तक नहीं की थी। 2 दोस्त एक बिस्तर पर सोते हैं, लिहाजा वो भी लेट गए। बिस्तर सर्द था। थोड़ी देर में बिस्तर की सतह उनकी वजूद की गर्मी से गर्मा जाती, मगर उन्हें सर्दी सताती रही और गर्मी पुकारती रही। उन्होंने अपने ऊपर एक कंबल डाल लिया। चारों शाने चित होकर अपने अपने हाथ अपने अपने सीने पर रख लिए। सानी ने कहा, ऐ खुदा, ये ज़रूरी नहीं कि हर औरत अपने महबूब को तहजीब की जन्नत से निकलवाए। मेरे मालिक, मुझे ऐसी औरत ना बना, मेरी हया के आईने को सलामत रख। अली ने कहा, ऐ रब्बे करीम, मेरी सानी मुझे बहुत अजीज़ है, मुझे उसके साथ इंसान रहने दे, हमारे किरदार में पुख्तगी दे। जब तक तेरे हुक्म के मुताबिक और शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हमारा निकाह ना हो, हम अपनी शर्म और किरदार की पुख्तगी को बरकरार रखें। तू दुआओं का सुनने वाला और गुमराही से बचाने वाला है। ऐसी शदीद सर्दी में एक दूसरे की बदन की आंच महसूस होती है। ख्वाहिशात धूम मचाती हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती हैं। ऐसे में दुआ काम नहीं आती, लेकिन जो दुआ के साथ दवा भी करते हैं उनका ईमान कभी नहीं डगमगाता। सानी और अली ने दुआ के बाद दवा की, अपनी आंखें बंद कर लीं
अपने अपने दिमाग को हिदायत दी कि वो पूरे 3 घंटे तक गहरी नींद में डूबे रहें। अगर नींद के दौरान कोई गैर मामूली बात हो या ख्वाबगाह में कोई कदम रखे तो फ़ौरन ही आंख खुल जाए। वो बचपन से दिमाग को हिदायत देकर सोने और जागने के आदी थे। आधे मिनट के अंदर ही उन्हें नींद आ गई। अब शैतान भी उन्हें नहीं जगा सकता था। ना सानी को अपने मर्द की कुर्बत से बहका सकता था और ना ही अली को सानी के हुस्न और शबाब से भड़का सकता था। ये सच है कि शैतान का दाव हर इंसान पर नहीं चलता। अगर चलता हो तो हमारी दुनिया में शैतान ही शैतान होते, कोई सच्चा और खरा इंसान नज़र ना आता। मेरे वो क़ारीन जो किसी हद तक मुस्तकिल मिजाज हैं और अच्छी क़ुव्वत इरादी के मालिक हैं, वो अपने बच्चों पर यह नुस्खा आजमाएं। उन्हें सुबखेज़ी की आदत डालें, योगा की हल्की फुल्की मशक़ें कराएं और सोने से पहले समझाएं कि वो हर रात आंखें बंद करके दिमाग को हिदायत दिया करें। अपने जागने का वक्त मुकर्रर करें और अपने कमरे में किसी मुदाखलत से आंख खुल जाने की भी हिदायत करें। आप कोई भी काम करें, इब्तदा में नाकामी होती है, इसलिए बच्चों में हौसला और मुस्तकिल मिजाजी पैदा करते रहना चाहिए। आप एक आध माह में देखेंगे कि बच्चों ने रात के वक्त अपने दिमागों को अपने कंट्रोल में रखना सीख लिया है। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप आइंदा नस्लों में बेशुमार सोनिया सानी और अली तैमूर का इजाफा करेंगे। अली का ख्याल था कि महल में कोई वारदात हुई तो आधी रात के बाद होगी, क्योंकि ख्वाबगाह के बाहर चारों तरफ सख्त पहरा था। खुद दलाई लामा भी जाग रहा था। वारदात करने वालों के लिए बस एक ही रास्ता था। अगर इस महल में कोई चोर दरवाज़ा होता तो वो उसी रास्ते से ख्वाबगाह में दाखिल हो सकते थे। हर महल में चोर दरवाजे और तहखाने होते हैं। सलमान ने दलाई लामा के दिमाग से मालूम किया था। उसके महल में कहीं चोर दरवाज़ा नहीं था और ये एक ताज्जुब की बात थी। उसके सेक्रेटरी की सोच ने भी यही बताया था और ख्याल ख्वानी करने वाले से किसी का दिमाग झूठ नहीं बोलता। बहरहाल वारदात का रास्ता आसान हो तो मुजरिम आधी रात का इंतज़ार नहीं करते। ख्वाबगाह की एक दीवार पर दलाई लामा अव्वल की पेंटिंग लगी हुई थी। वो बड़ी सी तस्वीर बिल्कुल साकित थी, और तस्वीर तो साकित ही होती है, लेकिन ठीक 11 बजे उसकी आंखों में हरकत हुई। उसकी पुतलियां अपनी जगह से सिरक गईं। वहाँ नन्हा सा खला पैदा हुआ। फिर उस खला से किसी की जिंदा आंखें झांकने लगीं। ये एक गैर मामूली बात थी कि कमरे की कोई चीज़ अपनी जगह से सिरक जाए और जिंदा आंख किसी मुर्दा आंख की जगह लेकर देखने लगे। चूंकि ये गैर मामूली बातें थीं, इसीलिए सानी और अली की आंख खुल गई। सानी ने सर घुमाकर अली को देखा। वो बोला, कुछ गड़बड़ है। वो कंबल को एक तरफ फेंकते हुए उठ गए। फर्श पर आते ही अपने पंजों के बल उछलने लगे। वो जूते पहनकर सोए थे। किसी खास तैयारी की ज़रूरत नहीं थी। अपनी एड़ियाँ उठाए पंजों के बल इसलिए उछल रहे थे कि नींद का हल्का सा भी खुमार रह गया हो तो ख़त्म हो जाए। दिमाग पूरी ताजगी और चाबक दस्ती से सोचना समझना शुरू कर दे। लहू में गर्मी और बदन में हरारत पैदा हो। वो इसी तरह उछलते हुए बाथरूम में आए। वहाँ अपने चेहरों पर पानी के छींटे मारे। तौलिए से मुंह पोंछते हुए कमरे में आए। उस वक्त एक दीवार से चोर रास्ता खुल रहा था। चोर दरवाजे के दूसरी तरफ नीम तारीकी थी। वहाँ से 4 अदद लामा चलते हुए कमरे की रोशनी में आए। वो बुद्धमत के भशकुओं की तरह गेरवे रंग के कपड़े पहने हुए थे। ऐसे धार्मिक लोग मासूम होते हैं, मगर वो सूरत से छटे हुए बदमाश लग रहे थे। उन्होंने पेशानी पर राख लगाई हुई थी, जैसे अगन पूजा के बाद आ रहे हों। एक के हाथ में तीर कमान और बाकी तीनों के हाथों में नंगी तलवारें थीं। वो बड़े इत्मीनान से आए थे, मगर उन्हें पंजों के बल उछलता देखकर ठिठक गए। एक ने गरज कर अपनी जुबान में कहा, रुक जाओ, हमने तुम्हें नींद की हालत में देखा था। अगर ज़रा भी शुबा होता कि जाग रहे हो तो तुम्हारे सामने ये चोर दरवाज़ा ना खोलते। दूसरे ने कमान के चिल्ले पर तीर चढ़ाते हुए कहा, चोर दरवाज़ा देख लेने के बाद इस जवान को जिंदा नहीं रहना चाहिए। कमान तन गई। तीर सनसनाता हुआ आया। अली ने उछलते हुए फ़ज़ा में कलाबाजी लगाई। तीर बाथरूम के दरवाजे में पैवस्त हो गया। दूसरा तीर चलाने से पहले सानी जिम्नास्टिक के करतब दिखाती हुई करीब आई, फिर उछलकर एक फ्लाइंग किक मारी। तीर कमान वाला मुंह पर ठोकर खाकर पीछे की तरफ लुढ़खड़ाया। पीछे खड़े हुए साथी की तलवार उसकी पुश्त में घुसी और पेट की तरफ से निकल आई। वो लामा उन्हें तरने वाला समझ कर आए थे, ऐसी सिचुएशन के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने चौंक कर अपने मरने वाले साथी को देखा, फिर उनकी समझ में नहीं आया कि क्या देख रहे हैं। सानी और अली ने उन्हें देखने और समझने की मोहलत नहीं दी। उन दोनों के ताबड़तोड़ हमलों का अंदाज ऐसा था कि उन्हें तलवार चलाने का मौका नहीं मिल रहा था। फिर वो तलवारें भी उनके हाथों से निकल गईं। सिर्फ 2 मिनट के अंदर उनमें से एक मर चुका था और 3 नीम बेहोशी की हालत में फर्श पर पड़े हुए थे। दोनों ने एक एक तलवार उठा ली।
सानी ने एक को ठोकर मार कर कहा, उठो और वहां चलो जहां मुझे ले जाने आए थे। तीनों ने चौंक कर सानी को देखा क्योंकि वो उनकी जुबान बोल रही थी। अली ने भी उन्हीं की जुबान में पूछा, जहां इसे ले जाना चाहते थे वहां आतिशी असलहा भी है? उसने हाँ के अंदाज में सर हिलाया। अली ने उसकी गर्दन दबोचकर उठाते हुए कहा, हमारे आगे आगे चलो। वो तीनों हुक्म की तामील करने लगे। सानी और अली उनके पीछे चलते हुए चोर दरवाजे से गुजरकर एक राहदारी में आए। वो राहदारी एक तरफ मुड़ गई। उसके आखिरी सिरे पर एक जीना था। जीने के नीचे तय खाने का मंजर दूर तक नजर आ रहा था। वहां जनरेटर के जरिए बल्ब रोशन थे। उनकी रोशनी में कुछ लामा गेरवे लिबास में दिखाई दे रहे थे। तय खाने के वस्त में आग रोशन थी, शोले भड़क रहे थे। एक बोना दौड़ता हुआ उन शोलों के दरमियान से गुजरता हुआ कभी उधर जा रहा था, कभी इधर आ रहा था। शोलों के दरमियान से गुजरते हुए कुछ पड़ता जा रहा था। सानी ने अपने शिकार की पसली में तलवार की नोक चबोई, फिर पूछा, ये क्या हो रहा है? वो बोला, ये हमारे इलाके का बोना जादूगर है, बेहद खतरनाक है। तुमने हमें जेर कर लिया है, लेकिन इसके सामने तुम दोनों सहरजदा हो जाओगे। अली ने सानी से फ्रेंच जुबान में कहा, इस तहखाने में छुपने की खासी गुंजाइश है, मैं जा रहा हूं, तुम 10 मिनट बाद बोने जादूगर के पास जा सकती हो। वो चला गया। बोना जादूगर मंतर पढ़ने और शोलों के दरमियान से गुजरने के अमल में मसरूफ था। दूसरे लामा उसके आस पास दोनों हाथ जोड़े सर झुकाए खड़े थे। बोना एक जगह रुक गया, फिर उसने झुककर एक बर्तन से मुट्ठी भर सफूफ उठाया और उसे आग में फेंक दिया। उसके साथ ही शोले भड़क भड़क कर बुझ गए। बुझी हुई आग से धुआं उठकर फैलने लगा। थोड़ी देर तक धुआं बादल की तरह छाया रहा। जब धुआं छटने लगा तो एक दरवाजे पर दलाई लामा नजर आया। वो दलाई लामा जो वहां का हुक्मरान था, सानी और अली का मेज़बान था। उसने दोनों हाथ कमर पर रखकर कहा, बोने शैतान, वो हसीन दोशीज़ा अभी तक क्यों नहीं आई? आ गई सरकार, आ गई, वो देखें। बोने जादूगर ने एक तरफ इशारा किया। सब ने उधर देखा। सानी 3 लामाओं के पीछे जीने से उतर रही थी। उसने एक को लात मारी, जिसे लात पड़ी वो 2 साथियों से टकराया। फिर वो तीनों जीने पर से लुढ़कते हुए नीचे पहुंचकर चारों शाने चित हो गए। दलाई लामा ने परेशान होकर पूछा, बोने शैतान, ये क्या हो रहा है? क्या तेरी किसी गलती से मेरा भेद खुलने वाला है? बोने ने सानी के हाथ में नंगी तलवार देखकर कहा, सरकार, मेरे जादू में कोई खोट नहीं है। मेरी कामयाबी का सबूत यह है कि इसका जवान साथी महल में बेहोश पड़ा होगा और अभी मैं आपके सामने इसके हाथ से तलवार गिरा दूंगा। वो बुलंद आवाज में मंतर पढ़ने लगा। सानी एक एक कदम बढ़ रही थी, उसके करीब आती जा रही थी। बोने के मंतर पढ़ने का अंदाज बता रहा था कि उसके हाथ से तलवार गिर जाएगी, लेकिन तलवार की नोक बोने के हलक से आकर टिक गई। वो गड़बड़ा गया, मंतर भूल गया। सानी ने कहा, तलवार तब गिरेगी जब मंतर पूरा कर सकोगे। तुम्हारे इसी हलक से मंतर निकलता है ना? दलाई लामा ने घबरा कर कहा, मेरा भेद खुल जाएगा। ये महल से बाहर जाएगी तो मेरी अय्याशी और जुराइम का इंकशाफ होगा। मेरा इक्तदार छिन जाएगा। इसे गोली मार दो। उसके बॉडीगार्ड ने होल्स्टर से रिवॉल्वर निकालकर सानी का निशाना लिया, लेकिन ट्रिगर ना दबा सका। रिवॉल्वर वाला हाथ कलाई से कटकर गिर पड़ा। दलाई लामा के हलक से चीख निकल गई। अली के हाथ में तलवार देखकर वो भागना चाहता था, मगर तलवार के एक वार से भागने वाला एक टखना कट गया। वो फर्श पर गिरकर रहम की भीख मांगने लगा। हम इसी तरह रहम करेंगे जैसे तुम हमारे साथ करने वाले थे। ये बताओ, क्या तुम पर तनवीमी अमल किया गया है? दलाई लामा ने तकलीफ से कराहते हुए कहा, मैं नहीं जानता तनवीमी अमल क्या होता है। मुझे मालूम था कि तुम्हारे खानदान के लोग टेलीपैथी जानते हैं, किसी के भी दिमाग में घुस जाते हैं। इस बोने जादूगर ने मुझ पर कुछ अमल किया था और यह यकीन दिलाया था कि मेरे चोर ख्यालात कोई नहीं पढ़ सकेगा। यही वजह थी कि सलमान उसके दिमाग में पहुंचकर भी उसके चोर ख्यालात नहीं पढ़ सका था। सानी ने बोने से पूछा, दलाई लामा का बेटा और भाई कहाँ हैं? बोने ने दलाई लामा से नजरें चुराते हुए कहा, बेटा भी बाप की तरह याश है, कहीं शिकार खेलने गया है। जब बैरूनी ममालिक से कोई हसीन लड़की आती है तो दलाई लामा मुझे हुक्म देता है कि मैं उसके भाई पर अमल करूं। मेरे जादू से उसका भाई नीम पागल हो जाता है। ये उसे काल कोठड़ी में बंद कर देता है। जब भी हसीन लड़कियां गायब होती हैं तो उनका इल्ज़ाम इसके भाई पर आता है। अली ने दलाई लामा को तलवार की नोक पर रखते हुए कहा, मुझे अपने भाई के पास ले चलो। दलाई लामा उसे डरते डरते एक कैद खाने तक ले गया। वहां पर दलाई लामा का भाई मौजूद था। अली के पूछने पर उसने बताया कि वो सोचता है कि कभी कभी दिमागी तौर पर कहाँ गुम हो जाता है
ہوش میں آتا ہے تو کئی راتیں اور کئی دن گزر چکے ہوتے ہیں۔ وہ بیڈ روم سے غائب ہوتا ہے اور ہوش میں آنے کے بعد خود کو کسی ویرانے میں پاتا ہے۔ علی نے اسے بتایا کہ اس کا بھائی دلائی لاما عیاش اور چال باز ہے۔ وہ باہر سے آنے والی حسیناؤں سے کھیلنے کے لیے خود معصوم بن کر اپنے بے قصور بھائی کو دنیا کی نظروں میں مشکوک بناتا ہے۔ 12 بج گئے تھے۔ سلمان نے اپنے وقت پر آ کر دیکھا تو بازی پلٹ چکی تھی۔ اس نے علی سے پوچھا، یہ کیا ہو گیا؟ کیا دلائی لاما مجرم ہے؟ جی ہاں، آپ ذرا معلوم کریں، یہ عیاش شیطان لڑکیوں کو اغوا کر کے کہاں چھپاتا ہے؟ سلمان نے دلائی لاما کے پاس آ کر اس کی سوچ پڑھی۔ وہ سوچ کے لحاظ سے معصوم تھا۔ جو حقیقت سامنے آ گئی تھی دماغ اس کا اعتراف نہیں کر رہا تھا۔ سلمان نے کہا، الو کے پٹھے، اب سمجھ میں آیا، تیرے دماغ کے ایک حصے کو لاک کیا گیا ہے، اسی لیے میں تیرے چور خیالات نہیں پڑھ پایا تھا۔ اب میں مکفل حصے کا تالا کھولوں گا۔ یہ کہتے ہی اس نے دماغ میں زلزلہ پیدا کیا۔ دلائی لاما تکلیف کی شدت سے حلق پھاڑ پھاڑ کر چیخنے لگا۔ زلزلے میں سب کچھ تہس نہس ہو جاتا ہے، پھر تالا کیسے نہ ٹوٹتا۔ دماغ کے چور خانے سے اس کا کچا چٹھا باہر آنے لگا۔ سلمان نے تھوڑی دیر خیالات پڑھنے کے بعد علی سے کہا، یہ تہہ خانہ بہت وسیع و عریض ہے۔ اس کے ایک حصے میں اس نے حرم سرائی بنایا ہوا ہے جہاں پر غائب ہونے والی حسینائیں قید ہیں۔ یہ تمام ثبوت کافی تھے۔ علی اور ثانی نے دلائی لاما کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اپنی بے گناہی ثابت ہو جانے پر دلائی لاما کا بھائی ان کا بہت مشکور تھا۔ وہ ان کے ساتھ ہیلی کاپٹر تک آیا۔ وہ ان کا احسان مند تھا، بار بار ہاتھ جوڑتا تھا اور ثانی اور علی کے پاؤں چھو کر کہتا تھا، آپ دونوں کی مہربانیوں سے میں بے قصور ثابت ہوا اور اب یہاں کا دلائی لاما بنایا جاؤں گا، لیکن میں آپ کے قدموں کی دھول ہوں، مجھے گائیڈ بنا کر ساتھ لے چلیں۔ علی نے اس کے شانے کو تھپک کر کہا، تمہاری ضرورت ہوئی تو ہم تمہیں ضرور بلائیں گے۔ وہ بولا، آپ نہیں جانتے، ساحر اعظم ساسان ڈوگرا بہت ہی خطرناک جادوگر ہے۔ وہ اپنے کالے جادو کے ذریعے آپ دونوں کو دیکھ رہا ہوگا۔ اس سے کوئی بات چھپی نہیں رہتی۔ اس ملک کا ہر نیا دلائی لاما ایک بار ضرور اس کے سامنے حاضر ہوتا ہے۔ آپ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ تبت کا اصل حکمران وہی ہے۔ علی نے کہا، کالے جادو کا اثر دیر پا نہیں ہوتا، خطرناک جادوگروں کو دور ہی سے گولی مار دی جاتی ہے۔ کیا جمہوریہ چین اور دوسرے بڑے ممالک ساسان ڈوگرا پر قابو نہیں پا سکتے؟ کیا اسے نیست و نابود نہیں کر سکتے؟ وہ اور اس کا طلسم کدا کسی کو نظر نہیں آتا۔ اگر ایسا ہے تو ہر نیا دلائی لاما اس کے سامنے کیسے حاضر ہوتا ہے؟ یہ صرف وہی دلائی لاما جانتا ہے جو اس کے سامنے حاضر ہوتا ہے۔ غیر ملکی جاسوس بس اتنا ہی دیکھتے ہیں کہ دلائی لاما ایک غار کے اندر جاتا ہے، اور وہ کہاں جاتا ہے یہ معلوم کرنے کے لیے کچھ جاسوس تعاقب کرتے ہیں، لیکن کچھ عجیب قسم کی بھول بھلیوں میں گم ہو جاتے ہیں، جس کے بعد ان کا سراغ کسی کو نہیں ملتا۔ جب وہ ایسا زبردست جادوگر ہے تو اس کے خلاف ہماری کیا مدد کرو گے؟ میں اس کے خلاف کچھ سوچنے کی جرت ہی نہیں کر سکتا، البتہ اس غار تک رہنمائی کر سکتا ہوں۔ یہاں کے دستور کے مطابق مجھے 24 گھنٹے کے اندر دلائی لاما بنایا جائے گا۔ میں ساسان ڈوگرا کے سامنے حاضر ہو کر اس کے قدموں میں گڑ گڑاؤں گا کہ وہ آپ دونوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ علی نے اس کے شانے کو تھپک کر کہا، اپنے گھر جاؤ اور یہ بزدلانہ خیال دماغ سے نکال دو کہ تم ہمارے لیے رحم کی بھیک مانگو گے۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، ثانی نے ڈانٹ کر کہا، بس اپنی آواز اب نہ سنانا، یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ وہ سر جھکا کر ہاتھ جوڑ کر پیچھے چلا گیا۔ علی نے پائلٹ کو اشارہ کیا۔ ہیلی کاپٹر سٹارٹ ہو گیا، پنکھا گردش کرنے لگا، پھر وہ آہستہ آہستہ فضا میں بلند ہوتے ہوئے پرواز کرنے لگا۔ 24 گھنٹے کے اندر دلائی لاما بننے والا ہیلی کاپٹر کو آسمان کی بلندیوں پر دور جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر بولا، مجھ پر احسان کرنے والی دیوی اور دیوتا، یہ تمہارا آخری سفر ہے، میں تمہیں آخری پرنام کرتا ہوں۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑے ہوئے تھا، پھر اس نے سر کو جھکا لیا، آنکھیں بند کر لیں۔ چند لمحوں تک یوں ہی کھڑا اپنے محسنوں کے لیے دل میں درد محسوس کرتا رہا، پھر چونک گیا، سر اٹھا کر دیکھا، دور پہاڑی کے پاس وہ ہیلی کاپٹر ڈگمگا رہا تھا، شاید کوئی خرابی پیدا ہو گئی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر یوں دوڑنے لگا جیسے گرتے ہوئے ہیلی کاپٹر کو تھام لے گا۔ وہ کئی میل فاصلے پر تھا، اس کے باوجود دوڑتے ہوئے اور اونچی آواز میں چیختے ہوئے بولا، اے مہان جادوگر، تیرا جادو بول رہا ہے، تو جس سے ناراض ہوتا ہے انہیں معاف نہیں کرتا، مگر وہ دونوں میرے محسن ہیں۔ اے مہان جادوگر، تیرا پجاری دیا کی بھیک مانگتے ہوئے کہتا ہے ان کی جان کو بخش دے، لیکن اپنی آہوزار کے برعکس اس نے ہیلی کاپٹر کی پرواز نیچی ہوتے ہوئے دیکھی۔
بظاہر یوں لگ رہا تھا کہ پائلٹ ڈگمگاتے ہوئے ہیلی کاپٹر کو سنبھالنا چاہ رہا ہے مگر اپنی ہر کوشش میں ناکام ہو رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہیلی کاپٹر ایک زوردار دھماکے کی آواز کے ساتھ ایک پہاڑی سے ٹکرایا۔ اس زوردار دھماکے کی آواز دور دور تک سنی گئی۔ برف سے ڈھکی پہاڑی سے ٹکرانے کے باوجود ہیلی کاپٹر کے ایندھن نے آگ پکڑ لی۔ ہیلی کاپٹر قداور شعلوں میں گھر گیا۔ ڈاکٹر محمد انیب سلیمی کے ساتھ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کا سبسکرائبر بنیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ISI اور پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔